अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मुलजमान ने 4 माह के बच्चे को अगवा कर लिया और अगवा की वजह कुछ और नहीं बल्कि अपनी गोद को हरा करना था। यानी 1 माह से उसके लखते जिगर को छीन कर उन्होंने अपनी गोद को भरने की कोशिश की। मुलजमान बच्चे को लाहौर से लेकर दूसरे ज़िले में फ़रार हो गए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 माह के बच्चे को साहिवाल से बाजियाब करवा लिया है। मुलजमान ने बच्चे को क्यों अगवा किया, बच्चे की वालिदा ने मुलजमान पर क्यों एतबार किया और क्यों अपने बच्चे उसके पास छोड़ के गई, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ये मुलजमान की बारे में मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि अपनी गोद संवारने के लिए, किसी माँ की गोद उजाड़ने के लिए इन्होंने भरपूर प्लानिंग भी की और तकरीबन ये उसमें कामयाब भी हो गए हुए थे। लेकिन पुलिस को अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिली, बच्चा भी रिकवर कर लिया गया और मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलजमान इस टाइम थाना शफीकाबाद पुलिस के हिरासत में। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर भी मौजूद हैं, गुलाम मोहम्मद साहब। मुलजमान भी साथ है, पहले मुलजमान से जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये सारा प्लान बनाया, कैसे औरत को अपने झांसे में लाए और फिर कैसे बच्चे को अगवा किया। जानते हैं, तुम्हारा नाम क्या? दिलदार। ये दिलदार औरत कौन है? ये रबीना, मेरी बीवी। शादीशुदा हो? हाँ जी, शादी। अच्छा, कितने अरसे से शादी हुई भी है? 4 साढ़े 4 साल से। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो? विहाड़ी के अड्डा पक्की मोड़ पे। अच्छा, लाहौर क्या कर रहे हो? लाहौर मैंने तो मजदूरी मिस्त्रियाँ नाल। मिस्त्री? हाँ जी, मिस्त्रियाँ। हाँ जी, बड़े इमारत वगैरह बनाना है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? हाँ, वो छोटा बच्चा सी थले वो कुड़ी दा ना ਕਿਹਦਾ? थले दूसरी कुड़ी दा की ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਹਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ 2 ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ 4 ਮਾਹ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਿਨੇ ਲਗੇ 9 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰਤ ਨੂੰ? 6-7 ਮਾਹ ਸੇ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ? ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ, 1 ਬੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਵਜੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੀ 1 ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਚਾਵਤਨੀ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਲੈ ਗਏ? 31-12 ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। गिरफ्तार कर लिया। ਬੀਬੀ, ਤੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਚ ਐਡਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਸੁਰਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਔਲਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੇਨ ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਪਾਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਆ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸ ਕੋ ਗਈ ਸੀ ਨਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਇਆ ਕੋ ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਕੋ ਜਾਂ ਦਾਈ ਕੋ ਜਾਓ ਦਾਈ ਕੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਕੋ ਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਰੋ ਮਾਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵਾ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ 6-700 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 15-16,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ 15-16,000 ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੀਨ ਕੇ ਇੰਜ ਬਸ ਲੈ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਡਾ- ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਓ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਬਸ ਚੋਂ ਕਿਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਦੇ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂਗੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ कभी सुन लेगा इसलिए करके सर जी बस गलत कदम चाह लिया आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं अब माफिया मांगी जा रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने बच्चे को बस इनको बच्चा प्यारा लगा इसलिए ले लिया बहुत ख्याल किया तफ्तीशी अफसर हमारे साथ मौजूद है इनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है और अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम मोहम्मद साहब क्या वाक़या है क्या 15 चली कैसे आप लोगों को पता चला ये सर 15 की इतला नहीं थी ये जो मुदैया थाने में आई थी इसने दरख्वास्त दी है दरख्वास्त पे एफ़.आई.आर दर्ज हुई है उसके बाद ये एफ़.आई.आर मुझे मार्क हुई है मैंने ये इसके मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल जो टेलीफोन नंबर थे उनकी CDR का तरक किया है और CDR से हमने इनको ट्रेस किया है कहाँ से भी- पकड़े गए ये लोग ये पकड़े गए हैं जी इधर ज़िला ब्याड़ी से और चीचा वतनी ठीक है क्या तफ्तीश में अब तक बात सामने आई क्यों बच्चा लेके गई औरत का ये बच्चा ये जो मुलजमा है इसकी औलाद नहीं है इन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने प्लान बनाई है ये औरत जो मुदैया है इनके घर इस औरत का आना जाना था ये इसने मुंह बोली बैन बनाई हुई थी उसने ये मौका देख कर वो बच्चा लेके चली गई है इनकी कोई अगवा की नीयत वगैरह ऐसी नीयत थी बच्चे को बेचना वगैरह था या खुद ही रखना था ये इन्होंने खुद ही रखना था ये किस जुर्म के इर्तिकाब होता है ये 363 का ये 363 क्या होती है ये छोटे बच्चे को अगवा किया है छोटे बच्चे का अगवा जो है 363 इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक किया आप लोगों ने हाँ जी हमारा जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा नहीं हमें मिला ठीक है तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी बच्चा जो है वो वालदा के हवाले कर दिया बच्चा जी वालदा के हवाले वो हमने कर दिया है ठीक ठाक है हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है वो और इनको हमने गिरफ्तार किया है ये अदालत में पेश करके इनके खिलाफ जो असब ज़ाब्ता कार्रवाई है वो इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी बहुत मेहरबानी आप मुलजमान की गुफ्तगू भी सुन रहे थे और आपने जो तफ्तीशी अफसर है उनकी भी गुफ्तगू सुनी कि औलाद नहीं हो रही थी और इस चीज़ के अंदर इन्होंने ये प्लान बनाया कि किसी औरत का बच्चा जो है वो अगवा करते हैं और अपनी गोद जो है वो हरी कर लेते हैं पहले इन्होंने 6-7 माह एक औरत के साथ टाइम स्पेंड किया उसका एतमाद जीता और फिर उस औरत की भी आप हमाकत देखें कि वो अपने 4 बच्चों को इनके भरोसे छोड़कर बहावलपुर चली गई और पीछे से इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के एक बच्चे को उठाया और उसके बाद अगवा करके चीचा वतनी ले गए लेकिन खुशकिस्मती बच्चे की भी अच्छी थी और माँ की भी
कि पुलिस ने मुलजमान को पकड़ लिया और बच्चे को रिकवर कर लिया। बच्चा अपनी माँ के पास सिस्टम है, जैसे आपने तफ्तीश अफसर की गुफ्तगू सुनी, वालदा से जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। मुलजमान की आपने गुफ्तगू सुनी, बच्चा जो है उसको वालदा के हवाले कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बच्चा इंतहाई छोटी उम्र का बच्चा है, 4 माह सिर्फ इसकी उम्र जो है बताई जाती है। और मुलजमान बच्चे को लेकर बिहाड़ी चले गए थे और जिस तरह आपको तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बिहाड़ी से बच्चे को जो बाजियाब करवाया गया और वापस ला के माँ के हवाले किया गया। माँ भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। बीबी क्या वाक़या हुआ है? जी, ये हमारे घर एक दिन के लिए आए थे। इन्होंने कहा कि हमारे मालिक मकान शादी पे गए हुए हैं और हमें एक दिन के लिए अपने घर रहने दो। मैंने इनसे कहा कि मुझे एमरजेंसी मेरे मियाँ का विक्टोरिया अस्पताल में बहावलपुर ऑपरेशन है गुर्दे का और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे हैं। तो मैं इनके पास छोड़ के रात को यहाँ से रवाना हो गई थी और सुबह 9:30 बजे पता चला कि मेरा बेटा इन्होंने गवाह कर लिया। कितने अरसे से जानती है मैंने? तकरीबन इनको मैं 3 माह से जान रही हूँ। कैसे जान पहचान कैसे हुई? जी, इनका जो भाई है ना हमारे लड़कों के साथ काम करता था और ऐसे इनका आना जाना हमारे घर में हुआ। भाई जो है वो कभी कभी आते थे, लेकिन जो भाई आपी है ना वो हमारे घर हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद लगा लेके हमारे घर आती थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। तो आप एक ऐसे मियाँ बीवी जिनको आप थोड़ा अरसे से जानती हैं, उनके पास अपने 4 बच्चों को कैसे छोड़ के चली गई जब ना जान ना पहचान? नहीं, मैंने अपने घर वालों के पास छोड़ा था और ये भी वहाँ पे आए हुए थे। मेरे घर में मामी है, मामू है और हमारे 2 भांजा और भांजी आए हुए थे। मैंने उनके पास छोड़ा था और ये भी वहाँ पे आए हुए थे। जी। ये आपसे कभी इन्होंने मुतालबा किया था कि बच्चा दे दे या आपका बच्चा लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा कोई? जी, आपने इन्होंने 1-2 मरतबा मुझे कहा था कि बाजी अपना जो एक बच्चा है ना मुझे दे दो, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मेरा हौसला नहीं है, मैं इनको अपना बच्चा नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को गवाह किया। नहीं, आपने जब आप जानती उसको 3-4 महीनों से थी तो उन्होंने आपसे कैसे ये कह दिया कि बच्चा दे दे? कोई आप लोगों की बात हो रही थी, पैसे देना चाहते थे या वैसे ही लेना चाहते थे? नहीं, पैसों का कोई मामला भी नहीं है। ऐसे मैं इन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। पैसों का कोई भी मामला नहीं है। बस ये है कि कह रहे थे हमारे 3 बच्चे हुए हैं और तीनों वफात पा गए हैं और हमें एक बच्चा दे दो। मुकदमा आपने दर्ज करवाया था? जी, मैंने मुकदमा खुद दर्ज करवाया। तो जो आपने नाम लिखे हैं, आपको तो इनके नाम भी नहीं असल पते, इनके तो नाम कुछ और हैं। जो मुकदमे में आपने नाम लिखे वो तो कुछ और जी, है। ये हमारे घर आते थे। भाई ने अपना नाम अरशद लिखवाया था और बाजी जो है उन्होंने शमीम लिखवाया था। तो उन्होंने जो मुझे नाम लिखाया मैंने वही बोला। जी। तो अब आपको बाद में पता चला उनका असल नाम क्या है? हाँ जी, उनका अब शनाख्ती कार्ड से पता चला कि उनके असल नाम जो है और है। तो इसका मतलब है कि वो तो पहले से ज़हन बना के आपके पास वारदात करने के लिए आए थे, बच्चा उठाने के लिए? नहीं, पहले आते थे, पहले नहीं था ऐसा काम करता। दोनों आते थे गोद में लेके ना बच्चे को, दोनों बैठ इसी को पकड़ते थे? इसी बच्चे को पकड़ के बैठ के रोते रहते थे और कहते थे बाजी दुआ करो कि अल्लाह मियाँ हमें एक बच्चा दे दे। तो मैंने कहा बाजी अल्लाह मियाँ ज़रूर देगा। मुझे ये नहीं था पता कि इन्होंने मेरा बच्चा ही उठा के ले जाना। तो आप तो बहावलपुर गई हुई थी अपने शौहर के ऑपरेशन के लिए, तो आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे को पीछे अगवा किया? किसने बताया? इन्होंने सुबह उठे हैं, उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करके कह रहे हैं कि नीचे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक और क्वार्टर वाली आई है तो उनके साथ ये आपी टकराई है। तो इन्होंने कहा कि आप ही ध्यान से। तो उसने कहा कि कहाँ जा रही है? इसने कहा कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ये दवाई लेने गई है, वापस नहीं आई। इसके बाद मेरी मामी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो अगवा हो गया। मैंने इस औरत को बहुत काले किए, इस औरत ने मेरी काले नहीं उठाई। बाद में इसने अपने नंबर बंद कर। तो आपको इन पर कैसे शक हुआ कि इन्होंने उठाया, या आपके रिश्तेदारों ने? नहीं, रिश्तेदारों ने खुद उन्होंने लेके जाते हुए देखा था। जी। फिर आप उसी दिन वापस आई आके? हाँ जी, मैं उसी दिन वापस आई हूँ। आके इनकी जो भी जानकारी थी सारा कुछ किया। जहाँ क्वार्टर पे रहते थे वहाँ गई हूँ। वहाँ से मैंने इनके जो मालूम खान से उनकी बात की है। फिर जो इनके साथ लड़के काम करते थे उनके पास गई। उनके पास भाई की तस्वीर मुझे मिल गई है और इनके तीनों नंबर मिल गए। मैं उसी टाइम आई हूँ पुलिस के पास। पुलिस को इनकी तस्वीर दी है, इनका सारा कुछ मैंने दिया। तो आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा बाजियाब हो जाएगा? जी, मुझे वाजिया हो जाएगा, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मेरे साथ सबकी दुआएं हैं, मैं सच्ची हूँ इसलिए। फिर आपको कैसे पता चला कि बच्चा जो है वो पुलिस ने बाजियाब करा लिया? जी, मुझे पुलिस ने इतला कर दी थी। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा हमने उठा लिया। पहले वो खुद ही गए थे बिहाड़ी, उसके बाद वो गए हैं चीचावतनी। मैं पुलिस वालों की मेहरबानी करती हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो जो बच्चा आपको मिला ठीक ठाक था, कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? जी, मेरे बच्चे को कोई चोट नहीं हुई, ठीक ठाक है बिल्कुल। आप देख भी सकते हैं। मुलजमान से आप मिली हैं? जी। क्या कहते हैं वो आपको? वो
अब माफ़िया मांग रहे हैं। उनके घर वालों ने भी कहा कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे बच्चों को माफ़ कर दें तो, लेकिन मैंने ठीक है, मैंने इस जहान में अगले जहान में उनको माफ़ किया है। अदालत जो भी सज़ा देगी वो अदालत का मसला है, इसमें मैं कोई जिम्मेदार नहीं, आप कैसे माफ़ कर सकती हैं? आपका बच्चा अगर ना मिलता फिर आप क्या करती? नहीं, वो तो अल्लाह मियाँ की लेन देन है। अगर मेरे पास खुदा का खास्ता अगर कोई मर जाता है ना वापस नहीं आप अगर माफ़ कर देती हैं वो किसी और का बच्चा उठा लेंगे? वो मैं मानती हूँ वो किसी और का उठा लें, लेकिन जितनी उनके साथ हुई है ना, उनकी माँ फ़ोन करके रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, बार बार कह रही है मेरे बच्चों को माफ़ कर दो। मैं 4 भाई पे लेटी हूँ, मैंने उनको माफ़ किया। आप क्या लगते हैं बच्चे के? मैं इसका चाचू हूँ। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपका भतीजा जो है वो अगवा हो गया? मैं तो सुबह सुबह काम पे चला गया था उधर, तो मामी हमारे ने फ़ोन किया, बच्चा अगवा हो गया। 9 बजे से लेकर गए, अभी तक आई नहीं है। तो हम काम छोड़ के फिर उधर आए तो नहीं थी। फिर इसको कहा कि भी तू जानती है, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। आपने कभी नहीं देखा होता नहीं, मुझे? पहले मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, तो फिर ये आई तो फिर कार्रवाई हमें शुरू की। तो आप क्या समझते हैं, मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए? जो लगता तो है तो वैसे ही, मगर मैं तो कहता हूँ माफ़ कर देना चाहिए वैसे। सही। आप इनका जिगरा देखें कि इनका बच्चा अगवा हो गया और ये भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह वो माफ़िया मांग रहे हैं माफ़ किया जा सकता है, लेकिन मुल्ज़िमान ने जिस दीदा दिलेरी से इस खातून का बच्चा अगवा किया और अगर बच्चा ना मिलता तो तब इनके तासुरात मैं जानने की कोशिश करता कि क्या तासुरात है, लेकिन अभी इनका बच्चा मिल गया तो ये कह रहे हैं माफ़ कर दें। लेकिन जिस तरह के वो डेस्परेट हैं, जिस तरह से वो औलाद के लिए डेस्परेट हैं, वो डेफिनेटली अगर यहाँ से इनको माफ़ी मिल जाती है वो दोबारा इस किस्म की हरकत ज़रूर करेंगे। जैसे आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी, तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू सुनी और फिर बुरसा की गुफ्तगू सुनी। बुरसा कहते हैं कि उनके जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने उनके बच्चे को अगवा किया उनसे गलती हो गई और शायद अब वो माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कि पुलिस की इतनी दौड़ लगी, बच्चा अगवा हो गया, 363 का मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए कि बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। अब बाजियाब हो गया तो उसके बाद इस किस्म की अगर गुफ्तगू होती है तो इस पर उनका क्या कहना है? ज़ुहैब साहब, अगवा बराए तावान जो लाहौर पुलिस बड़ी संजीदगी से लेती है। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, 4 माह का बच्चा था, पहले उस टाइम का थोड़ा सा तासुरात बताइएगा और अब ये जो वो कह रहे हैं कि वो शायद माफ़ कर दें, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। ये एक सोशल इशू है और मैं समझता हूँ ये आवाम तक पहुँचना चाहिए। इसमें जो अनफॉर्चुनेट स्टोरी है, अगर अब उसकी बैकग्राउंड में जाएं तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने एक कपल को जब औलाद से, नरीना औलाद से नहीं नवाजा तो उन्होंने ये क्राइम कंडक्ट किया। तो इसमें जो मेन रीज़न हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को किसके हवाले किया, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हवाले किया, आखिर कैसे ये ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ। हमें साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो किरायादारी एक्ट है इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। तो ये वो बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको लाहौर पुलिस को और बिलखसूसन हर जगह ये सेटल करने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम एहसास को देखें तो हम सबको वही एहसास है जो उन वालिदैन को हुआ कि जिनका ये बच्चा था, 4 महीने का एजाज़, उसको कैसे पीछे से उसकी एब्सेंस में अगवा किया गया, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। और फिर हमने जब हमारे पास ये केस रिपोर्ट होता है तो हमें पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वो भावलपुर में बीमार है और वो यहाँ अकेली थी और लिहाजा वो इसलिए उसके पास जाना चाहती थी इलाज मुआवजे के लिए, और इस बात का पीछे फ़ायदा उठाया गया। तो क्राइम रिकॉर्ड को देखना भी ज़रूरी है कि क्या ये जो कपल ने ये काम किया है इसके अलावा भी कहीं पे पंजाब में उसका क्राइम रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अगर क्राइम रिकॉर्ड फॉर द टाइम हम ये मान लें कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है रांझा साहब, लेकिन जिस तरह से वो डेस्परेट है बच्चा लेने के लिए, अगर उनको ये इस केस से रिहा होते हैं तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा एक्ट नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है हमें अपनी कानून की किताब तक अपने आप को लिमिटेड रखना चाहिए। आपने उनसे खुद इंटरव्यू किया होगा तो वो आपसे कहेंगे कि हम माफ़ी के
इल्तजा चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। अगर आज आप किसी को इस बिना पे हम कॉम्प्रोमाइज़ वैसे नहीं कर सकते, अगर मुदई पार्टी करती है तो मैं समझता हूँ कि ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए और कानून को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो कानून वैसे रंजा साहब कहता क्या है कि जैसे ये वाला केस है 363 का मुकदमा शफीकाबाद में दर्ज हुआ, मुदई माफ़ कर देते हैं, तो स्टेट कहीं पे एक्शन ले सकती है, आप लोग कहीं पे एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी मुकदमे में स्टेट खुद मुदई बन सकती है और जब कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे मुकदमे को खारिज किया जाता है तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ही प्रेरोगेटिव होती है। लिहाजा उसने जब भी कोई भी केस डायरी को मुरतब करना है तो वो उसको प्रॉपरली लिखेगा और इस सूरत हाल में अगर वो केस डायरी में ये लिख देता है कि ये मुलज़िम जो हैं वो गुनहगार हैं, तो जज की ये फिर स्वाबदीद है कि वो इस प्रेरोगेटिव को लेता है या कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे हमारे मुआशरे में बिल्कुल पर्चे जो हैं वो खारिज होते हैं, लेकिन कभी भी पुलिस ने ख़ुद ये स्टैंड नहीं लिया। इसमें ये होता है कि जब आपका बच्चा रिकवर होता है और अगर वो छोटा है 18 साल से, तो उसके जो वालिदैन हैं वो कोर्ट में 164 का बयान देते हैं, उसके बाद पर्चा खारिज होता है, लेकिन उसमें ग्राउंड्स मिसअंडरस्टैंडिंग की या और कुछ वजूहात हो सकती हैं। कानून में ये भी लिखा गया है कि कुछ दिनों के लिए अगर कोई ले जाता है तो सेक्शन चेंज हो जाता है। अवाम नास को शायद इस बात का नॉलेज नहीं है कि अगवा के अंदर भी डिफरेंट सब सेक्शंस हैं, उनकी सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं। 363 वैसे कहता क्या है? 363 जो है ये जितने भी बच्चे बालगान, जितने छोटे बच्चे हैं, माइनर्स जिनको कहा जाता है, उनकी चाइल्ड अबडक्शन और किडनैपिंग का सेक्शन है। ये सेक्शन ये कहता है कि विदाउट द कंसेंट और विदाउट द नॉलेज ऑफ द पेरेंट्स, विदाउट द नॉलेज ऑफ द लीगल कस्टोडियन और द लीगल हेयर, वो बच्चा जो है कोई ना कोई अबडक्ट करता है फॉर द कॉज ऑफ किडनैपिंग, जिसमें पेरेंट्स को के नॉलेज में ना हो और उसके वेयर अबाउट्स का ना पता हो, तो वो 363। इसमें तफ्तीश के अंदर कहीं पे ऐसी चीज़ तो नहीं आई कि इन्होंने कोई प्लान करके बच्चे को अगवा किया, कहीं बेचना हो, या सिर्फ यही औलाद ना होने की वजह से उन्होंने ये एक्ट जी किया? यकीन करें, इसमें यकीनी तौर पे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। जब मैंने एज एसपी इन्वेस्टिगेशन भी उनको इंटेरोगेट किया है और जब इंटेरोगेट किया है तो मुझे ये लगता है कि शायद ये प्रोफेशनल हैं, और मैं समझता हूँ हमें इसके स्टांस और इमोशनली हमें उनके स्टांस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना है, मैंने क्योंकि शादी को भी सिर्फ 4 साल हुए हैं, 4 साल तो इतना बड़ा पीरियड भी नहीं है जिसमें वो अल्लाह ताला से के हजूर दुआ ना मांग सकें, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और अगर हम इसको ये समझ लें कि उनकी मजबूरी है तो ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके सवाल की तरफ दोबारा आते हुए मेरी ये भी ख्वाहिश है कि क्राइम रिकॉर्ड पूरा पंजाब का देखा जाए, इनके फिंगरप्रिंट CROs लगाए जाएं और हम उनको देखें कि क्या ये कहीं चलान याफ्ता तो नहीं है। और आखिर टेम्परेरी जब भी कोई मूवमेंट करता है, माइग्रेशन करता है, तो ही हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन द पुलिस स्टेशन। इसीलिए शायद मेरी जब आपसे कल बात हुई तो आपने मुझे बताया कि उन्होंने अपने नाम भी जो मुदैया है उसको नाम भी गलत बताया हुए थे, इससे उनकी बैड इंटेंशंस कहीं ना कहीं है। हाँ जी, आप ये देखें कि ट्रस्ट डेवलप करना, किसी की एब्सेंस में बच्चे की कस्टडी लेना, बेशक पेरेंट्स गुड फेथ में कर रहे हों, और दूसरे नंबर पे अपने नामों का गलत बताना। लेकिन ये जिन एरियाज़ में आके रह रहे हैं, यहाँ पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और शादबाग और शफीकाबाद के एरिया में ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं। लेकिन शायद हमें अर्बन एरियाज़ में ये समझना ज़रूरी है कि रेंटल एग्रीमेंट्स को हमें बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है कि कौन आदमी कहाँ रह रहा है। लेकिन शायद इलिटरेसी और एजुकेशन के फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो शायद ट्रस्ट उस पर करके कॉम्प्रोमाइज़ किया है बच्चे को। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब रांझा साहब एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थे। मुलजमान की गुफ्तगू सुने, मुद्दइयों की गुफ्तगू सुने तो उसके अंदर कहीं पे बंदा थोड़ा सा शेकी होता है कि शायद ये मुलजमान जो है सज़ा से बच जाएंगे और उसके बाद दोबारा वापस आके ऐसी कोई ना कोई हरकत करेंगे। लेकिन ज़ुहैब रांझा साहब ने जिस तरह से बहुत ब्रीफली इसको और बड़ा इन डेप्थ बताया है कि ये इतना आसान नहीं है कि अगर मुद्दई माफ़ कर देते हैं और वो बाहर आ जाएंगे। स्टेट का अपना किरदार है, स्टेट इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है और स्टेट मुद्दई बन सकता है। और मुलजमान को जैसे ये कह रहे हैं कि थॉरोली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उनका क्राइम रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत है ताकि ये पता चल सके कि ये किसी बैड इंटेंशन के तहत तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको भी लगता है कि कहीं ना कुछ है जो भी अनफोल्ड होना बाकी है, जिसके बाद मुलजमान के बारे में हतमी राय जो है वो कायम की जा सकेगी।
जिस केस के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजमान जो है दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए हैं, बच्चा बाजियाब हो गया है। लेकिन आपने बच्चे की वालदा की गुफ्तगू सुनी, वो कहती है कि मुझसे ये लोग माफ़िया मांग रहे हैं, इनके रिश्तेदार मुझसे माफ़िया मांग रहे हैं, तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। सबसे पहले कानूनी तौर पे इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून राना इंतज़ार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। राना साहब, एक 4 माह का बच्चा घर से अगवा होता है और मुलजमान से बच्चे को बिहाड़ी के इलाके में जाके पुलिस रिकवर कराती है और वापस लेके आती है। तो जो मुलजमान हैं वो बच्चे की वालदा के जानने वाले हैं, कुछ 4-5 महीने पहले उनका ताल्लुक बना था। अब जबकि बच्चा रिकवर हो गया, मुलजमान पकड़े गए हैं, तो हमसे बात करते हुए उसकी माँ ने कहा कि ये सारे हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर से मुराद के वो हमसे माफ़िया मांग रहे हैं, तो हम इनको माफ़ कर देंगे। ऐसा मुमकिन है? देखें, किसी भी जुर्म के मुतालिक किसी को माफ़ करना या ना माफ़ करना या किसी को सज़ा दिलवाना, तो ये एक्सक्लूसिव राइट है कंप्लेनेंट का, उसकी मदर का या पेरेंट्स का, कि वो उसको माफ़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उनके पास बिल्कुल लीगल राइट है कि वो उसके मुताबिक वो, अगर ऐसे हर केस पे माफ़ कर दिया जाएगा तो फिर स्टेट की रेट जो मुलजमान के ऊपर डेटरेंस है वो कैसे क्रिएट होगी? देखिए, अब कुछ इसीलिए कानून के अंदर कानून की मिथ्स जो है वो उसकी इसी चीज़ को देखते हुए कुछ जो ऑफेंसेस उनको कंपाउंडेबल करार दिया गया है कि जिनमें राजीनामा हो सकता है, कुछ ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं, जिस तरह ये मौजूदा ऑफेंस। मगर फिर उसमें होता ये है कि वो फिर बयान इस तरह का दे देते हैं कि इन्होंने इसे अगवा नहीं किया था, तो फिर इस तरह के बयान के बाद भी वो मुलजिम जो है क्विट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर मैटर में एक तो ऑफेंस बहुत ज़्यादा हीनियस है, बच्चे को माँ से अलहदा कर देना, उसके भाई बहनों से अलहदा कर देना, बच्चे की उम्र भी बहुत कम है। और बिल्कुल इसमें हमें, मैं तो कहूँगा कि मैं आपसे पहले भी प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, ये काम पार्लियामेंट के हैं कि पार्लियामेंट में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए कि इन ऑफेंसेस को कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंप्लेनेंट इसको परसू नहीं करता तो स्टेट इसको प्रॉपर तरीके के साथ प्रोसिक्यूशन के ज़रिए प्रोसिक्यूट करने के लिए मुलजमान को आगे आएगी, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर पनिशमेंट्स लोगों को नहीं देंगे रेपिटेशन ऑफ क्राइम रहेगी। अब जिस तरह मौजूदा केस है, इसमें अगर वो इनको माफ़ कर देते हैं तो वो फिर दोबारा, क्योंकि जो मुलजिम है या जो है वो दोबारा इस क्राइम को रिपीट करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि मुलजमान से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो वो कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया है कि हमारी शादी को 4 साल हुए, किसी डॉक्टर ने हमें कहा, नर्स ने कहा कि मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो हमने बच्चे की ख्वाहिश में, बच्चे की लालच में इस बच्चे को अगवा नहीं किया, बल्कि हम अपने साथ ले गए। मैंने कहा तुमने उसकी वालदा से इजाज़त ली? कहते हैं नहीं, हमने बात की थी तो वालदा ने इनकार कर दिया था कि मैं बच्चा नहीं दे सकती, तो ये लेके चले गए। तो मैंने उनसे बार बार ये पूछा कि ये बच्चा तो आपसे पुलिस ने रिकवर करा दिया, अगर आपका कहीं पे दाग लगता है और आप बच्चे को ले जाते तो आप किसी भी बच्चे को ले जाएंगे ना, हर दफ़ा पुलिस आपको नहीं पकड़ सकेगी। तो ये मुलजमान को अगर ये माफ़ कर देते हैं तो डू यू थिंक, आपका इतना तजुर्बा, वसी तजुर्बा, कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि जो हैबिचुअल ये लोग ऑफेंडर होते हैं, और अक्सर हमारे जहाँ जो मुलजमान हैं 90% लोग रेपिटेशन ऑफ क्राइम करते हैं, जो भी रीजंस था, मगर कोई भी कानूनी इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास घर नहीं है तो दूसरे घर पे जाके कब्जा कर लेगा कि मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए। तो आपको जब तक लीगल तरीके से किसी चीज़ को, या तो ये किसी बच्चे को ऑप्ट करें, किसी के माँ बाप इनको लीगल तरीके से दें, या जो लावारिस बच्चे मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं वहाँ जाके उनको अप्लाई करें या रिक्वेस्ट करें, वहाँ से इनको कोई बच्चा मिल जाए। अब ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, या अपनी फैमिली के अंदर से जिनके पास बच्चे ज़्यादा हैं उनके अंदर किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि हमें एक बच्चा ऑप्ट करना है तो वो हमें दे दें। इस तरह तो किया जा सकता है, मगर ये कि पर्टिकुलरली अब इस तरह जब माँ एक ट्रस्ट के ज़रिए, आप देखें यहाँ पर एक हमें सोशल जो क्राइम हमारा बढ़ता जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि हमें लोगों पर अक्सर जो क्राइम है उसके पीछे ट्रस्ट होता है, वो चाहे पैसा है या कुछ भी है, हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं उसके बाद होता है। अब यहाँ पर माँ का भी कसूर है किसी हद तक सोशली, कि वो 4 माह के बच्चे को किसी के पास छोड़ के क्यों चली, और वो भी अननोन लोग जिनसे 2-3-4 और ख़ास तौर पे ये है कि उनके पास कोई गार्डियन भी नहीं था, या उनका कोई बड़ा बच्चा होता, अभी तो शुक्र है उनके बाकी बच्चों को वो नहीं लेके गए। और सबसे बड़ी गुड लक इनकी है कि बच्चा बरामद भी हो गया। अब जब 4-5 माह पहले आपकी इस्लामदा उनसे हुई है तो हो सकता था वो लेके कहीं ऐसी जगह चले जाते बाद में बच्चे की रिकवरी ही ना होती। तो इस सोशल एलिमेंट पे कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंस होती है, जिसकी वजह से ये होता है। जिस तरह बच्चे घर से बाहर निकलते हैं या हम उनको शॉप पर अकेले भेज देते हैं छोटे बच्चों को। अब जो हमारे यहाँ मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं वाक़यात बच्चों के ख़िलाफ़ रेप के, और दूसरा ये है कि सोडोमी के, तो उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि हम उनको अनअटेंडेड छोड़ते हैं, और दूसरा ये कि प्रॉपर्ली सज़ाएँ नहीं देते।
जिसकी वजह से ये ऑफेंसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में इसमें बिल्कुल इसको हमें जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इस पर लेजिस्लेशन करनी चाहिए और कुछ ऑफेंसेस के मुतालिक बिल्कुल कह देना चाहिए कि इनमें किसी भी तरह की जो है वो कंप्रोमाइज़ को जो इजाज़त वेरी प्रिसाइजली अदालत में जब ये केस जाता है, अगर माफ़ी नहीं होती या चलान पुलिस जमा कराती है, अदालत में केस जाता है, तो क्या ये प्ली वहाँ पे कारामद साबित होगी मुलजमान की कि हमारे पास औलाद नहीं है, हमें फ़लाँ डॉक्टर ने कह दिया कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमने बच्चे को उठा लिया? देखिए, कानून में डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कौन से जो एक्ट्स हैं वो आपके जुर्म होंगे। उसमें कहीं पे आपके इमोशंस या आपकी किसी भी सोसाइटी के डिप्राइव्ड पीपल हैं आप, किसी भी वजह से उसको बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया गया। आपने कोई एक्ट है उसको कानून से तजावज़ करके जाके कमिट किया है तो वो ऑफेंस बनता है। अब ये बच्चे को उनके माँ बाप की इजाज़त के बगैर उठा कर ले गए हैं, ये बिल्कुल अगवा है। और इस पर ये इनकी जो भी प्ली जो आप बता रहे हैं कि ये कल को उनके पास बच्चा नहीं था इसलिए ले गए, अब उसके वो किसी का बच्चा उठाने की इजाज़त आपको कोई कानून नहीं देता, तो इसलिए ये प्ली उनकी बिल्कुल कारआमद नहीं है अगर ये केस आगे चलता है। बाकी अब उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते। बहुत शुक्रिया राना साहब। माहिर कानून राना इंतज़ार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इससे पहले एसपी जो थे मुतलका उनकी भी आपने लीगल ओपिनियन जो थी वो सुनी कि किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। इसका क्रक्स ये है कि मुलजमान को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, मुलजमान को ये पता नहीं चलेगा जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उसकी सज़ा क्या है, और उनको उसका जब तक खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, माशरे में क्राइम्स की रेपिटेशन होती रहेगी। इसके अंदर वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है कि कैसे वालिदैन 3 से 4 माह के होने वाली शनासाई के ऊपर इतना एतबार कर लिया माँ ने कि अपने बच्चों को गैरों के पास छोड़ के चली गई, और उन्होंने मौके से फ़ायदा उठा के 4 माह के बच्चे को माँ से ही जुदा कर दिया और अगवा करके ले गए। अगर पुलिस बरबत कार्रवाई ना करती तो शायद आज एजाज 4 माह का जो है वो अपने वालदा और वालिदैन के पास वापस ना आता। इसलिए हमें बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे बच्चे हैं, हमें ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी जो उठाएं तो फिर इस तरह के वाक़यात जो होते रहेंगे। और जिस तरह राना इंतज़ार साहब ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले जिनसी ज़्यादती के वाक़यात जो हैं उनके अंदर जो इजाफा हुआ है उसकी भी बड़ी वजह यही है कि हम बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, उनको सुपरविज़न नहीं देते, बड़ों की जो सुपरविज़न जिसकी ज़रूरत, अपने की जो सुपरविज़न की ज़रूरत है वो नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और मुलजिमान जो मर्ज़ी प्ली लें, जो मर्ज़ी कहें कि उनके पास औलाद नहीं थी, राना साहब ने उसका भी जवाब दिया कि अगर किसी बंदे के पास घर नहीं है तो वो किसी के घर पे जाके कब्ज़ा तो नहीं कर लेगा, उसका एक प्रोसीजर है। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट करना है, आप दारुल उमान चले जाएं या ईदी सेंटर से बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वहाँ पे जाके कर लें। इस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे और उसकी अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो ये दोबारा ऐसे वाक़यात जो हैं वो माशरे में रोनमा होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।